और ये एक अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक को राइज होने के लिए दूसरे का फॉल होना आवश्यक है। दैट इज द अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर गुड है तो एक को इविल बनना पड़ेगा। सो इसलिए ये बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारा समुद्र मंथन भी देवता और दानव मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट देवता और एब्सोल्यूट दानव कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें ग्रे एरियाज भी देखना है, हमें सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना है, और हमें ऑब्वियसली एक बिगर एक एक जो पर्सपेक्टिव है अपनी प्रजा के लिए, यही तो हमारी प्रायोरिटी है ना, हमेशा से यही रही है। Namaste everyone. Welcome to Sangam Talks. Today we are going to have this session in an interview-based format. And as an interviewee, we are having Ravi Singh Chaudhary ji with us today. Welcome, sir. नमस्ते श्रुति जी। He has been our speaker on multiple occasions in the past as well. Then he is an author of 4 books, namely Rishi Intelligence, Chanakya's Intelligence, Krishi Samhita, and Go Samhita. In order to check about his books, you may please feel free to explore our YouTube channel, and you may simply browse for Ravi Singh Chaudhary ji and you'll get a list. He has done BTech in mechanical engineering and has 6 years of industry experience in HEC, Rachi, and Vedanta. His research revolves around the Indian knowledge systems. He is also the director at Dhanvantri Natural Foundation, which is a consultancy firm for Vrikshayurved, that is agro-Ayurveda, Vedic cow rearing, and agroforestry. He is also in the subcommittee of new syllabus and curriculum for Bachelor of Science, which is mainly limited to heritage of agriculture and natural farming. He has also published a paper on decolonization of mind. So today we are going to talk about his recently published book, which is Chanakya's Intelligence. In this book, he has basically tried exploring the essence of Chanakya's intelligence, a riveting journey into the strategic wisdom of Chandragupta Maurya's training. It also unveils the intricacies of foreign affairs with a focus on SAM as a detailed conflict resolution tool. The book also offers a comparative analysis of Chanakya with Sun Tzu and Machiavelli, drawing parallels in the pursuit of effective governance. This book will not talk about economics, but purely political science and leadership lessons for the king. Chanakya's deep insight into Shatru Bodha, which is the understanding of the psychology of the enemies, is a timeless wisdom relevant in the world of geopolitics and geoeconomics. So it is a masterpiece and it is definitely a must read, especially if you are someone who is associated with politics, or if you are pursuing political science, or for that matter, economics, and looking forward to a future in a leadership position, be it in a private or a public sector organization, or be it in a government ministry. So definitely it should be in your bucket list. And reading this book just for once will not do justice to it. It should work like a reference manual for people who are associated with political think tanks. So without any further ado, I would directly like to delve into the conversation with Ravi Singh Chaudhary ji. Welcome, sir. So हमने आपकी किताब पढ़ी चाणक्याज इंटेलिजेंस एंड ये टॉक अब उसी संदर्भ में है. हम उस बुक के ऊपर विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन. So coming to the first question directly, are leaders and king born or made? I'm asking this question because during our school time also we have debated on this topic multiple times. लेकिन ये चाणक्य इंटेलिजेंस के संदर्भ में मैं आपसे समझना चाहती हूँ. Okay, so this is basically a long debate between पुरुषार्थ एंड भाग्य. हम ये कह सकते हैं कि सब कोई अपनी डेस्टिनी लेके आता है कि यहाँ पर अपनी डेस्टिनी बिल्ड करता है. ठीक है, ये कुछ रीफ्रेम अगर मैं करूं इस प्रश्न को तो ये कुछ ऐसा होगा. तो हमारे शास्त्र क्या उत्तर देते हैं
उस पे अगर मैं आऊं तो इनहेरेंट क्वालिटीज आर द सीड्स, ठीक है, बट टू हैव अ ट्री फ्रॉम अ सीड वी शुड हैव अ फर्टाइल ग्राउंड, and that fertile grounds are efforts. So it's a combination of both purusharth and bhagya. So leaders are, yes, born, but if they are not nurtured well, they will not be kind of, uh, you know, the actual leaders. So it's a combination of both. Uh, that would be my answer. Right, so very well said. Uh, so now actually I'm going to move towards the last chapters of the book. So this question is about understanding the two school of thoughts, if I may put it that way, or not necessarily two different, but how would you like to differentiate between Chanakya's and Sun Tzu's The Art of War? Okay. So there are many similarities actually, uh, but Sun Tzu was kind of a military leader. He was a strategist for the army. So his perspective will be all around, will be on war. Okay. But Chanakya is not specifically thinking about war only. He is thinking about state. So that is one of the perspective uh, that converts into their strategies and tactics. Okay. So Chanakya will have much more broader perspective, and on the basis of discussion of wars, we can have some similarities and or differentiation. Okay, like both didn't like to have a, a head-to-head war. Okay, both liked the proxy war, mantra yuddha, kuta yuddha, use of spies. Okay, use of other means, because war uses resources. It uses your time. It consumes your best men. Okay, so that's why no one wants to have a direct engagement on battleground. Okay, so Sun Tzu believed that the best war is the best strategy is to have no war. Okay. Okay. So diplomacy can be one kind of a thing that can be used. So in that perspective, both the leaders, both the thought leaders are the same. Uh, but Chanakya is thinking more about state, not just about the army or the war. Very well said, actually. So, if I understood your answer correctly, you are basically saying that war should be the last option for any leader or any military head for that matter. And we should first employ the different tactics to avoid the war and to achieve our means. And if nothing is achievable using those tactics, then this should be the last resort of any And military. if that is the condition, if there is a condition that war is unavoidable, then we have to assess the our own capacity. You can say the SWOT analysis, uh, and capacities and the strengths of your enemy also. So Sun Tzu was like, if two contenders are of same capacity, same strength, then they should engage in war. But Chanakya will again avoid that situation. Okay, because he will say it's like two big pots are trying to crush each other, and both will break. So if they are of same capacity, then again war should be avoided. Okay, but Sun Tzu will like, no, we should engage in the war. So that is one of the that is one of the differentiation between Chanakya and Sun Tzu. Right. So now, coming to my next question. In the book, you have touched upon the types of games. Yeah. Yes. So if I may ask a question related to the same, so what, according to you, would be the most preferred aspect of game and why? Okay. So let me first point out or categorize the gains that Chanakya mentioned in the Arthashastra. So first one is the Adeya, the gains that are easily acquired and those cannot be easily taken back by the enemy. Okay.
and the second is like gain that are not easily acquired but can be easily taken back by the enemy. Okay, so this is very easy. If we compare one and two, ade and pratyade, ade will be of a higher order. Okay, because it is taken easily and cannot be taken easily back by the enemy. Okay, and there are many gains that like the king went along with his ministers, or the king went against the suggestions of his councils. Okay, so gains that are kind of a easy nature and have some stability, that should be of higher priority. Okay, and the you can say जो हम कहते हैं जनमत or the I'm forgetting the word, uh, consensus, technically consensus of his people, of his praja, of his councils, that gain is of higher order. Okay, he cannot go against the praja, and in some of the situation he even cannot go against his ministers, because that will introduce vigrah within his territory or the kingdom itself. Okay. Since you touched upon that, there is a mention of strategic autonomy also in the book, Yeah. Yeah. wherein Chanakya emphasizes that if it is in the benefit of the state, he might sometimes have to use the power. The king might sometimes have to use the power, and which might not be favored by his ministers or his praja. तो ऐसे में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है रवि जी? प्रजा के अगेंस्ट तो बहुत कम ही सिचुएशन हमने देखा है, क्योंकि प्रजा के अगेंस्ट जाने पे सम्राट अशोक की तरह फिर वो किंगडम के साथ होता है. सो इट इज ऑफ टाइमलाइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य. तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो प्रजा ही है. जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो जो एलाइज है या जो फॉरेन कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे परमिशन ना लेना, दैट गोज फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. अभी जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हमें पूछना पड़ रहा था कई सालों तक. यूएन जा रहा है, कोई कोई यूएस से बात कर रहा है, कोई सोवियत से बात कर रहा है, और फिर उन्होंने कहा ना तो ना. ठीक है, तो हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें डर लग रहा है कि सैंक्शंस लग जाएंगे क्या, है ना. तो ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है. ठीक है, तो आपकी डिसीजंस की ऑटोनॉमी, मतलब उसको इन्फ्लुएंस एक्सटर्नली कोई ना करे, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. तो इंडियन ओशन में आपने क्या कर रहे हैं आप, उसके लिए बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. दैट इज पावर टेक्निकली. सो बट इंटरनली हम तो कंसेंसस लेते हैं. लोगों के बिना हम मतलब उनको अवॉइड करके आगे नहीं जा सकते, नहीं तो फिर वो विद्रोह में बदलता है फिर. ठीक है, एंड वो फिर लॉन्ग टर्म में वो डेट्रीमेंटल होता है राजा के लिए. और ये भी मैं बताना चाहूँ, मोनार्क जो इंग्लिश में वर्ड होता है, भारत में मोनार्क और निरंकुश शासक ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है. हम लोग तुरंत राजा को जो है जब ट्रांसलेट करते हैं तो किंगडम एंड मोनार्क कह देते हैं, तो वो उसमें बहुत भेद आ जाता है. ऐसा भारत में स्थिति नहीं रही है, क्योंकि राजा के ऊपर गुरु भी है. ठीक है, और पावर जो है राजा खुद से ड्राइव नहीं कर रहा है, अपने काउंसिल से ड्राइव कर रहा है, या जो हम कहते हैं कि सप्तांग मॉडल है उससे ड्राइव कर रहा है. ठीक है. राइट, राइट, राइट. क्योंकि आपने बोला कि हम मोनार्क को हिंदी में ट्रांसलेट करके राजा नहीं कह सकते, सो उसी प्रकार किताब के अंदर एक किंग को विजिगीषु आपने टर्म किया है, और चाणक्य उन्हें विजिगीषु कहते हैं. तो क्या आप प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विजिगीषु होता क्या है? ओके, सो योग मार्ग में हम कहते हैं कि यम और नियम है, तो वहां पर एक हाईएस्ट वर्च्यू में हम संतोष को एक वर्च्यू मानते हैं. कंटेनमेंट, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, कंप्लीटनेस, ग्रेटिट्यूड जो हम वर्ड यूज करते हैं. सो कंटेनमेंट क्या करता है कि मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देता है. ओके. ओके, सो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जर्नी अलग होती है और मटेरियल प्रोग्रेस की जर्नी अलग होती है. तो मटेरियल प्रोग्रेस की जर्नी में असंतोष इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ
फाउंडेशनल वैल्यू, आपके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस होना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। गलत और सही पे मैं नहीं आ रहा हूं, बट दैट जो डिसकंटेनमेंट है वो एक डिजायर पैदा करता है। तो विजिगिशु मतलब होता है द कॉन्करर, जो उसका स्टेट है वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको वो एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है। अलग बात है कि वो फिर वही मोनार्क और उसके कंपेयर करेंगे तो हम जस्ट वॉरियर्स नहीं है, हम लोग द ग्रेट नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्करर्स है वो वॉर कर रहे हैं, फिर नई टेरिटरी जीत रहे हैं, फिर नई टेरिटरी जीत रहे हैं, उस बेसिस पे ना हो करके हम टेरिटरी उतना एक्सपैंड कर रहे हैं जहां पर हम योग क्षेम का नियम पालन कर पाए। ठीक है। योग क्षेम मतलब है कि जो एक्चुअली प्राप्त है आपके पास उसको नर्चर करना, उसको उसके वेलबींग के बारे में सोचना, प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट के बारे में सोचना। एक्विजिशन टेक्निकली योग मतलब होगा, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना, जो मिला है उसको संभाल के रखना, और जो संभला हुआ है उसको बचा के रखना कि उसको लूज नहीं करना। तो क्षेम में होता है प्रोटेक्शन आ जाता है। तो हम युद्ध ऐसे नहीं लड़ रहे हैं कि टेरिटरी बस बढ़ा रहे हैं, बट जहां भी टेरिटरी एक्सपैंड किए वहां पर धर्म की स्थापना करके वहां के प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया। फिर हमें लगा कि अच्छा ये प्रॉस्पर हो चुका है, अब हम नई टेरिटरी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बुक स्टार्ट होती है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। तो वहां पे आगे जो श्लोक बढ़ता है वो ये आता है कि युद्ध का एक ही कारण रहा है भारत में, कि धर्म की जब हानि होती है दैट इज द ओनली कॉज कि हमें युद्ध करना है। ठीक है। धर्म। तो यहां पर भी एक्सपेंशन उसी लेवल का है जिसको हम जिसमें प्रजा की सेवा हम कर पाएंगे। जब जहां नहीं कर पाएंगे उस टेरिटरी में जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमारी टेरिटरी ऐसा नहीं कि पूरे हम वर्ल्ड को कॉन्कर करने जा रहे हैं, उतनी कॉन्कर किए, मतलब जो मगध एम्पायर हम कहते हैं, जहां तक पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से करना और योगक्षम के नियम को पालन करना। तो विजिगिषु वही है, द कॉन्करर, जो बड़ा होना चाहता है, जो अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता है। दैट इज द यू कैन से द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ विजिगिषु वर्ड। ये एक्चुअली मेरा कुछ इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन था, उसका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। लेकिन फिर भी इफ आई जस्ट कैन एक्सटेंड दैट क्वेश्चन फर्दर, क्या एक विजिगिशु या someone who plans to expand their civilizational territories in modern day context, wouldn't there be a confusion कि लोग उसे डायरेक्टली अब्राहमिक रिलीजन से लिंक करने लग जाएंगे, या फिर हमारी कुछ नेबरिंग स्टेट जिनका ये इंटेंशन रहता है टू एक्सपेंड देयर सिविलाइजेशनल बाउंड्रीज, wouldn't these two be mixed further अगर इसका हम प्रॉपरली डिफरेंशिएट लोगों को नहीं करके दे पाए तो? आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट पे आ जाएगा। अभी सिविलाइजेशनल स्टेट काइंड ऑफ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती नहीं है, मतलब नेशन स्टेट इज मोर रिजिड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो नेशनलिज्म के टाइम में, नेशन स्टेट के टाइम में तो ये वॉर लाइक सिचुएशन ही होता है कि टेरिटरी को हम आगे बढ़ाएं या उसको एक्सपैंड करें। और क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सो एवरी स्मॉल एक्शन सबको पता चलता है, एवरीवन इज जजिंग यू कि आप क्या ये ले रहे हैं। बट सिविलाइजेशनल जो एक्सपेंशन है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ डेडलॉक है माइंड में हमारा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही बड़ा होना एक्सपेंशन होता है ना। आपके विचारों का इन्फ्लुएंस हो जाए, आपके जीने के तरीके का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ जाए, तो वो सिविलाइजेशनल टेरिटरी एक्सपेंशन तो हो ही रहा है। ठीक है। इस बात को भी हम समझ सकते हैं, और कंपेयर नहीं कर सकते पुराने टाइम और अभी। अभी एक्सपेंशन करना मतलब कि वो फिर वॉर पे ही जाना होता है, जो यूक्रेन और रशिया का जैसे है अभी, एक्सपेंशन ही वो कर रही है तो वो वॉर पे ही आएगा वो बात। ठीक है। ये बात आपने बहुत सही कही रवि जी। अ, क्योंकि हम विजय किशु के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विजय किशु के क्या गुण होने चाहिए, या फिर आपने किताब के अंदर बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है, षाडगुण्य थ्योरी। इफ यू कैन टच अपॉन व्हाट इज एग्जैक्टली दिस षाडगुण्य थ्योरी।
It would be really helpful. ओके। ओके, ये इस यहाँ पे दो प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिया। तो पहला है विजिगिषु के गुण, है ना। सो विजिगिषु जो शब्द है, उसका जो पावर है वो कहाँ से आता है। वो तो एक थॉट हमने दे दिया कि ही इज अ कॉन्करर, बट वो कॉन्करर बनता कैसे है ना। तो उसमें बलों की बात आती है कि पहला है आत्मबल, एक स्वयं का जो अंदर से जो हम कहते हैं कि पावर है। तो उसमें वो योग की बात आती है, विद्याओं की बात आती है, जो चार विद्याएं वो सीखते हैं बचपन में। चंद्रगुप्त मौर्य, वहां पर हम कहते हैं कि आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो इस लर्निंग की वजह से जो बल वो ड्राइव करते हैं उसको हम आत्मबल कहते हैं। ठीक है। फिर ऑब्वियसली ज्ञान बल आ गया, जो नॉलेज के लेवल पे है वो ज्ञान बल है, और योग से जो उन्होंने ड्राइव किया, द इच्छा शक्ति, द विल, वो आत्मबल हमने कहा। देन कोश बल, ऑब्वियसली द ट्रेजरी। अगर आपकी ट्रेजरी स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि अगर अभी मैं बोलूं कि भारत अभी स्ट्रांग एक्शंस कैसे ले पा रहा है, क्योंकि इसकी ट्रेजरी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। जब इसकी ट्रेजरी नहीं थी 50s और 60s में, या इवन 70s में, स्ट्रांग डिसीजन लेना भारत के फेवर में इसलिए नहीं होता था क्योंकि कॉम्पेंसेट करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तुरंत जो इकोनॉमी जो है वो फ्री फॉल में चली जाती थी अगर हम कोई स्ट्रांग डिसीजंस लेते थे। तो कोष बल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना, ट्रेजरी से जो पैसा आएगा। विक्रम बल, जो वेलर है, उत्साह है, जो बेसिकली कोई भी युद्ध हम कहते हैं कि एक मोरल से लड़ा जाता है। आप 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 उसमें देशभक्ति आप लाएं, मिट्टी के प्रति प्रेम लाएं, पूर्वजों के प्रति प्रेम लाएं, सिविलाइजेशन के प्रति अपना एक एक बॉन्डिंग आप बताएं। तो हर पावर का एक उत्साह होना चाहिए। अगर वो उत्साह नहीं है, मजबूरी में वो काम हो रहा है, बस पैसे से हो रहा है, तो वो काइंड ऑफ वो पावर उतना ड्राइव नहीं हो पाएगा। तो बल जो है यहाँ पर हम देख लिए कि आत्मबल, ज्ञान बल, कोश बल और विक्रम बल। ठीक है। और इसके बाद तीन और जो पावर जहां से आती है वो कहते हैं दंड नीति का आश्रय, एप्लीकेशन ऑफ दंड नीति, मतलब गवर्नेंस जो है वो किस लेवल पे है। एंड रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली रशिया को हम पिटेस्टल पे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है। भारत में भी कई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हमें ऑब्वियसली हेल्प मिलती है, और वो कोश बल को भी बढ़ाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमात्य, योर कैबिनेट, योर काउंसिल, योर मिनिस्टर्स। ठीक है। जो आपको सही दिशा देते हैं, डिस्कशन करके बताते हैं कि ये डिसीजन लेना है कि ये नहीं लेना है। ठीक है, और आगे बढ़। तो ये जो विजिगिषु है, इन 7 फैक्टर्स से अपना पावर जो है वो ड्राइव करते हैं। एंड आप देख सकते हैं दीज ऑल आर वेरी मच प्रैग्मेटिक, मतलब ऑब्वियसली इसमें से कोई भी एक जो है अगर गड़बड़ होगा तो वो फुल्ली कन्वर्ट नहीं होगा, जो जो इन्फ्लुएंस दिखा पाए अपने शत्रुओं पर। ठीक है। एंड दूसरा प्रश्न आपका था जो षाटगुण्य पे था। अब षाटगुण्य जो है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं 6-fold फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। तो ये अपने मित्र के साथ, अपने शत्रुओं के साथ, मतलब ज्योग्राफिकल जो एंटिटी है, आपके जो नेबर है, जहां आपका गवर्नेंस नहीं है, जहां आपकी मिलिट्री आप वहां से नहीं लाते, है ना, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं बट टैक्सेशन हो जाएगी, मतलब एक्साइज ड्यूटी, कस्टम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे जो स्टेट है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक सामने वाला एक और स्टेट होता है जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है। और एक और स्टेट होता है जिसके साथ हमारा पुराना कॉन्फ्लिक्ट हो, बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ हो। तो ऐसे एक साथ जो है कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो हम कहते हैं कि कोई भी एब्सोल्यूट एनिमी और एब्सोल्यूट फ्रेंड होता नहीं, मतलब जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है। उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, सिचुएशंस होता है, कोई एक पर्टिकुलर समय होता है। तो वहां पर शाटगुन्य एक पॉलिसी का 6-fold पॉलिसी का एक तरीका है कि हम कैसे डील करें अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ। ओके। तो वहां पर पहला आता है कि संधि। अब संधि है कि ट्रिटी साइन करना टेक्निकली, और उससे पीस आता है।
जैसे एक ट्रीटी हमने साइन की कि हम पहले न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज नहीं करेंगे, हम इन रिएक्शन कर सकते हैं, बट पहले हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ संधि, इट्स अ ट्रीटी, और इस ट्रीटी को हम नहीं तोड़ रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं विग्रह आता है, वॉर इज विग्रह, ऑफेंसिव ऑपरेशन, उसको हम वॉर कहते हैं। इन डिफरेंस है, वॉर नहीं कर रहे हैं बट मित्र भी वो नहीं है, कोई एक्शन हम नहीं ले रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेट जहां पे पीस दिख रहा है फॉर द टाइम बीइंग, तो हम आसन उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई सबमरीन को लगा के रख दिए, जब आता है कि अच्छा पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में सबमरीन्स को इधर से उधर ले जाया गया, यूएस ने अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे यहाँ पर, तो इसको हम यान कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, इट इट इज ऑल्सो नॉट द युद्ध, और इवन ये न्यूट्रलिटी भी नहीं है, और ये संधि भी नहीं है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो अलायंस होता है, आश्रय लेना, और ये तब होता है जब बहुत वीक हो कंट्री और सामने वाला बहुत स्ट्रांग हो, तो उसका आश्रय ले रहा होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन जो हम कहते हैं द्वैधी भाव, डबल पॉलिसी। ठीक है, मतलब एक के साथ पीस स्थापित करो, दूसरे के साथ वॉर करो। ठीक है, एक ही कंट्री है जो एक जगह पीस की बात कर रहा है और एक जगह खुद वॉर कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीके हैं, फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली। और इसमें वो सारी बातें आएंगी, बैलेंस ऑफ पावर आएगा कि हम क्यों न्यूक्लियर, अब ये बहुत अजीब लगता है लोगों को कि हम ये न्यूक्लियर वेपन्स नंबर्स बढ़ाते क्यों रहते हैं। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर का अपना एक रूल है, अगर आपके पास नहीं होती तो क्या पता आपके पास अटैक हो जाता। सो पावरफुल जब किंगडम होता है, पावरफुल एम्पायर होता है, या पावरफुल नेशन स्टेट होता है, तो लड़ने से कतराते हैं, है ना। दो कंट्रीज दोनों अगर पावरफुल हो तो भी लड़ने से कतराते हैं। वही जो सुनजू और चाणक्य की पॉलिसी थी कि प्रॉक्सी वॉर में रहेंगे वो, आ, आपके प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होंगे, आपकी न्यूज मीडिया को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके यूथ को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट वॉर में नहीं जाएंगे। आपके एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे, बट वॉर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ऐसी ही तरीके से जो है अपना कार्य जो है अपना करती है। तो यहां पर हमने देखा कि जो सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी है, और ये सिर्फ आचार्य चाणक्य के समय की नहीं है, ये पहले भी जाएंगे और बाद में भी जाएंगे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाते थे, इसलिए बहुत लोग को अ, ठीक है वो बाद में उनके डिसीजन सही हो गए तो उनको सही ठहरा दिया गया, लेकिन जो सरेंडर था एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि औरंगजेब के पास सरेंडर के लिए चले गए, तो बहुत लोग को अजीब लगता है कि ये कैसा पराक्रमी व्यक्ति तो नहीं लगता, क्योंकि ये तो सरेंडर। बट जो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी होती है, रियल टाइम जो सिचुएशन होता है ना, जब थ्योरेटिकल आप सोचते हैं तो इस तरह सोचते हैं, बट जब एक्चुअल डिसीजंस लेना पड़ता है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो बहुत, और एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, तो उस समय कई वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स को देख के डिसीजन लिया जाता है, और वहां पर शाटगुन्य बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है आपके। एंड ऑब्वियसली हर डिसीजन जो लगे कि फाइनल सेटलमेंट नहीं है, तो एटलीस्ट टाइम बाय करता है आपके लिए, ताकि आप स्ट्रैटेजी को फिर से बना सके नई सिचुएशन के हिसाब से। तो दैट इज शार्ट गुन्ने। लेकिन फिर भी एक बार सोच करके बड़ा अजीब लगता है कि इतने जमाने पहले ये सारी चीजों पे इतनी मतलब थॉट प्रोसेस एक्सचेंज होती थी, और इतनी अच्छी अच्छी थ्योरीज अभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये शार्दुल्य थ्योरी में भी हम इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं या अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसको एज अ थ्योरी कि किस तरीके से हमें फॉरेन पावर्स के साथ डील करना चाहिए, इट इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम आवर सिलेबस, विच इज अ वेरी सैड रियलिटी। बट सिंस हम शार्दुल्य की बात कर रहे हैं, आपने इसमें दो तरह के नेबर्स एक्सप्लेन किए हैं। वन यस, इज द मिडिल मैन जो होता है, माध्यमा, एंड द अदर मिडिल वन किंग, आई थिंक मिडिल मिडिल किंग, किंग। मिडिल यस, किंग जो होता है, एंड द अदर वन इज उदासीन।
सो क्या आप इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप, इफ यू कैन जस्ट रिलेट इट टू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, if you can ओके categorize a few nations, take their examples and understand this. ओके ओके। देखिए इसका बेसिकली मॉडर्न कंटेक्स्ट में चाइना एंड यूएस वर्ड आने लगता है, बट थोड़ा सा मैं अ, उस समय की परिस्थिति को मैं बता दूं कि ये जो मॉडल है, जो राजमंडल थ्योरी है, ये राजमंडल थ्योरी है ना। मंडल मतलब एक गोल घेरा, और राज मतलब जो राजा है उसके एक्सपेंशन वाला जो डायरेक्शन है, मतलब जिधर वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहता है, उस डायरेक्शन में जो सबसे पहला ज्योग्राफी आएगा उसको हम कहते हैं अरी, शत्रु। ठीक है। और उसका जो शत्रु होगा फिर वो हमारा हो जाएगा मित्र। ठीक है। बट क्या होगा कि हम ना कुछ कंट्रीज ऐसी होगी जिससे लड़ नहीं रहे होंगे, बट उनका टेरिटरी, उनका बॉर्डर हमारे शत्रु और हमारे मित्र शेयर कर रहे होंगे। जैसे पाकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान है। तो जब हम पाकिस्तान को जीतने का प्रयास करेंगे तब ये थ्योरी लगेगी। सबसे पहले तो ये स्टैटिक सिचुएशन में ये थ्योरी लगेगी ही नहीं। इसको लोग भूल जाते हैं कि जब वॉर हो रहा है तभी ये थ्योरी लगेगी। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्योंकि पीओके इज डिस्प्यूटेड, तो वहां पर चाइना एक शेयर करने लग जाता है। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है। एंड यूएस एक बहुत दूर में एक कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो उदासीन शब्द आएगा, उदासीन किंगडम होगा यहां पर यूएस। उसकी पावर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन में होगी, बट वो कुछ इन्फ्लुएंस अपना नहीं रख पाएगा। लेकिन ये मैं वही बता रहा हूं, ये चाणक्य के टाइम की है। अभी तो इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, अभी प्रॉक्सी वॉरफेयर है। सो उदासीन कंट्री अभी एप्लीकेबल यूएस पे नहीं होगी, वो ज्योग्राफिकली बस होगी। बट बट यू कैन से मतलब टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिक वे में यूएस इज नॉट उदासीन, क्योंकि यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस रखता है, करेंसी का इन्फ्लुएंस रखता है, इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस। तो उदासीन यूएस नहीं होगा। बट थ्योरी में जब कॉलेजेस में या ऐसे पढ़ाया जाता है तो तुरंत बोल दिया जाता है उदासीन जो यूएस है, और जो मध्यम मध्यम है वो चाइना है। ठीक है। तो वही चीजों को समझना आवश्यक है कि हम कॉन्क्वेस्ट के दिशा में नहीं जा रहे हैं। हम अ, बस टेरिटरी है, वहां पे डिस्प्यूटेड रीजंस है, और उसके साथ हम अपना सेटलमेंट चाहते हैं, और अपना हम व्यापार करना चाहते हैं। बेसिकली ट्रेड जो है, ट्रेड अभी देखिएगा कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो जो पीओके रीजन है वहां पे ही अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो पीओके अगर भारत के पास होगा तभी टेरिटरी अफगानिस्तान के साथ मिलेगी, और तभी हम डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हैं। तो आज का कंसर्न कुछ ऐसा होता है कि मार्केट फोर्सेस, वर्ल्ड इकोनॉमी, खुद की जीडीपी, सारी कंट्री आपको देख रहे हैं, डिजिटली सब वेल अवेयर है। तो उतने वेरिएबल्स को देख करके वॉर और आगे की सिचुएशन होती है। ठीक है। तो ये सिंपली एज इट इज राजमंडल थ्योरी को हम नहीं लगा सकते, बट इन अ सेंस हम बोल सकते हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो हमारे बगल के वीक कंट्री के साथ टेरिटरी शेयर करती है, तो उसको मध्यमा हम कह सकते हैं। बट यूएस इज नॉट ऑब्वियसली उदासीन। ओके, सही बात है। हम जो उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में होता था हम उसे डायरेक्टली अभी नहीं कर सकते हैं इम्पोर्ट, और सेम लेंसेज से नहीं देख सकते, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, which might result in certain new terms and new strategies also. The another question, Ravi ji, I would like, for that I would like to quote something which is there in the book. It says Chanakya indeed operated under the assumption that every state would prioritize its own self-interest. So, had Chanakya been present in the present world, what would you think would have been his take on globalization versus the inward-looking approach which has been recently opted by many countries? या सो चाणक्य उठ से कि बाइपोलर वर्ल्ड नहीं हो सकता, ये मल्टीपोलर होना चाहिए। सो एक एग्जांपल जो दिखता है कि
हम डॉलर में डील नहीं करते रशिया से, हम म्यूचुअल अपनी डॉलर को अवॉइड करके एक अपनी करेंसी के साथ जो है हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो गया कि हमें बोला गया कि देखो रशिया तो यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, तो सैंक्शन किया जा रहा, तो तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो? तो हम कहेंगे कि हमारी दुश्मनी तो है नहीं रशिया से, और हम अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे अगर हमें क्रूड ऑयल मिल रही है तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो हम क्यों ना ले उससे ऑयल। सो दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट को हमने ऊपर रख दिया। हम साइड क्यों ले कि अच्छा एक कंट्री ने बोल दिया है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री ने कि इसके साथ मत जाओ, और एक ग्रुप ऑफ कंट्री ने बोल दिया इसके साथ मत जाओ, तो हम उनके बोलने पे नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि हमें, जैसा मैंने कहा कि अभी मार्केट फोर्सेस, ट्रेड, ये चीजें फैक्टर में आती है ना। हमें ये देखनी पड़ती है कि इकोनॉमी को हम ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अपनी बेरोजगारी को दूर कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना, हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। तो हम इकोनॉमिक्स के रूल तोड़ करके हम एक सेट ऑफ कंट्रीज के साथ एक एक लॉबी बना ले, तो वो जमाना अब नहीं रहा, है ना। और ये एक एक अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक को राइज होने के लिए दूसरे का फॉल होना आवश्यक है, दैट इज द अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर गुड है तो एक को इविल बनना पड़ेगा। सो इसलिए ये बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारा समुद्र मंथन भी देवता और दानव मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट देवता और एब्सोल्यूट दानव कोई नहीं है। तो यहां पर हमें ग्रे एरियाज भी देखना है, हमें सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना है, और हमें ऑब्वियसली एक बिगर, एक एक जो पर्सपेक्टिव है अपनी प्रजा के लिए, यही तो हमारी प्रायोरिटी है ना, हमेशा से यही रही है ना। सो वो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब वो है। Understood. Understood. That was actually very well required to understand. Uh, you have dedicated a particular chapter on Vidyas in the book. So, if you can briefly touch upon those four Vidyas, and also if you can explain why Chanakya did not include Atharva Ved in the teaching for the king. Yeah. So Atharvaved is for sadhus, for sannyasis, for Siddha Purush, because it has mantras that has capacity to do things that are beyond the capacity of the state, like raining, वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो अथर्ववेद को रेफर कर रहे हैं सिद्ध महात्मा या उसको साधे हुए हैं, और वहां पर वो बता रहे हैं कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। तो ये राजा को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध भी पुरुष नहीं है। वो जान भी पाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए वेद त्रयी जो है, चार विद्याओं में जो त्रयी हम कह रहे हैं, दूसरी विद्या, वहां पर तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की शिक्षा जो है राजा को मिल रही है। लेकिन उसके भी पहले आन्वीक्षिकी बताई जा रही है, ठीक है। आर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्ट ऑफ थिंकिंग जो हम कहते हैं। अगर हमें तर्क लगाना ही ना सिखाया जाए, सच और झूठ का अंतर ही कैसे किया जाए वो सिखाया ना जाए, ठीक है, आ, बुद्धि को ना बढ़ाया जाए, जो हमारा इंटेलेक्ट है उसको ना बढ़ाया जाए, तो उसके पहले अगर हम उसमें चीजें हम डालते जाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। वो काइंड ऑफ जो हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम, है ना, एंड डेटा इज अगेन नॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो तो यहां पर दंड नीति तक ले जाने के लिए, सी, पावर और गवर्नेंस सबसे अंतिम में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसकी उसकी बुद्धि को बलिष्ठ करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए सांख्य, योग, लोकायत, दर्शन शास्त्र जो है उसे बताया जा रहा है। वेद से भी पहले दर्शन शास्त्र की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उसको न्याय वैशेषिक की समझ हो रही है, वो लॉजिक समझ रहा है, और फिर वो वेद को जब पढ़ रहा है और समझ रहा है, तो धर्म और अधर्म की समझ को वो समझ रहा है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। एंड देन वार्ता, जो ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉमर्स, सो बेसिकली जो हमने कहा, कोष बल, ट्रेजरी। अब ट्रेजरी को जब तक ट्रेड की समझ नहीं होगी, क्योंकि ब्लड लाइन वही है राष्ट्र का, आज के समय में भी वही ब्लड लाइन है। आर्मी भी नहीं होगी अगर ट्रेजरी नहीं हो आपके पास, तो है ना।
तो बिजनेस की भी समझ होनी चाहिए। तो ये जो चार विद्याएं हैं, ऑब्वियसली द दंड नीति जो हम कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट आर्ट ऑफ पनिशमेंट बट गवर्नेंस का, शासन नीति, राजनीति के जो नियम और कानून है जो एब्सोल्यूट मोरालिटी पे नहीं होते हैं, है ना, वो रियलिज्म पे होते हैं, तो वो अंत में सिखाया जा रहा है, ताकि पहले उसकी बुद्धि को बलिष्ठ किया गया, उसके धर्म और अधर्म को सॉलिडिफाई कर दिया गया, देन ट्रेड एंड कॉमर्स की समझ होगी, तब गवर्नेंस की शिक्षा दीक्षा उसे दी जा रही है। सीधा अगर पावर के बारे में उसे बताया जाए और क्या गलत है और क्या सही है उसके बारे में ना बताया जाए, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वो। एंड दैट इज मोनार्क। यही मैं बोल रहा था, मोनार्क और किंग में ये देखिए अंतर ये हो जाता है कि पहले हम नर्चर कर रहे हैं उसको, पहले उसको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मानव पहले हम बना दे रहे हैं, और उसके हाथ में जब पावर आएगा जी, तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। राइट, सो दैट्स द सीक्वेंस ऑफ विद्या। अंडरस्टूड। अब एक्चुअली डिस्कशन में थोड़ा सा अर्थ और धर्म पे शिफ्ट करना चाह रही हूँ। इफ यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल्स on how to resolve a conflict between Arthashastra and Dharmashastra or between Dharmashastra and Lokachar. ओके, सो ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी है, हमेशा से रही थी कि कोई एक डिस्प्यूट है। अब जैसे सबरीमाला का जैसे केस आया, है ना, अब इसमें जी, किसी ने लगाया इक्वालिटी फ्रेमवर्क कि डिस्क्रिमिनेशन है, किसी ने कहा हमारे शास्त्रों में ऐसा है, किसी ने कहा ये ट्रेडिशन ही ऐसा है, मतलब ये आज की बात नहीं है, ये डिकेड सेंचुरीज से ये हो रही है, तो ट्रेडिशन को क्यों बदल रहे हो। तो आप देखिए, इसी सिचुएशन में अलग अलग लोग आएंगे जो कहेंगे देखो शास्त्र को भी समय के साथ बदलना चाहिए, ट्रेडिशन को भी बदलना चाहिए, और फिर संविधान का हमें पालन करना चाहिए। आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क जो है वो यहां से आता है। तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जब लड़ेगा तो वहां पर अर्थशास्त्र को आचार्य चाणक्य ने प्रायोरिटी दे दी है। एंड अर्थशास्त्र नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट पॉलिटिक्स एंड संविधान के प्रिंसिपल सब कुछ है अर्थशास्त्र में। तो जो एक डॉक्यूमेंट है आपके कालखंड का, आपके समय के थिंकर्स ने कुछ लिखा है, तो वो अंत में आप पालन करेंगे जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा है, ठीक है। ओके, तो वहां पर इसका लॉजिक भी ये है, क्योंकि महाभारत में ये आता है कि धर्म की परिभाषा देना कठिन है, तो क्योंकि वो तर्कों से अप्रतिष्ठित होता है, तर्क से वो समझा नहीं सकते। तो आप अपने समय के महापुरुषों को देखिए, जिस रास्ते पे जिस मार्ग पे गए हैं उनका अनुसरण करिए, वो धर्म का मार्ग होगा, एक आसान स्वरूप में उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो और कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशंस और धर्मशास्त्र में होगा, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र को प्रायोरिटी दो, उसको अलग अलग शास्त्रों से उसको पहले ये देखो कि कहीं तो वो पाखंड तो नहीं हो गया है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन उसको भी फॉलो नहीं करना है, उसको ये देखना है कि वो ट्रेडिशन मेरिट पे है कि नहीं। तो सबरीमाला के केस में वो तो ऑब्वियसली जो हम है उसमें क्लैरिटी आ गई कि वो ब्रह्मचारी शब्द आ गया, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, बट जो डीटी है उनकी ही दूरी है फीमेल्स से, तो हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए। ये मतलब एक लॉजिकल भी था। हम सीधे ग्राउंड पर आ गए कि ये जेंडर बायस है, तो ऐसा नहीं है, हमें पूर्व पक्ष करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि पहले वो ट्रेडिशन है ही क्यों, और उसमें अगर कुछ फॉल्ट लाइन है तो उसको धर्मशास्त्र से हम देखेंगे, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का जो तरीका है उसको हम ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं। बट चाणक्य आप देखिए अर्थशास्त्र को सबसे ऊपर में रखते हैं। जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अ, आपने किताब के स्टार्टिंग में आपने उसकी शुरुआत फाउंडेशनल प्रिंसिपल से करी है, एंड इन दैट यू हैव मेंशन्ड दैट द फोर पुरुषार्थ्स आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, एंड उसके अंदर ऋषि कनद और चाणक्य के पर्सपेक्टिव का भी मेंशन है, and where it is mentioned that Rishi Kanad believes in the supremacy of dharma
आई थिंक आपने ऑलरेडी कुछ हद तक इस सवाल का ऑलरेडी उत्तर दे दिया है इन द लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट क्वेश्चन, बट जस्ट टू रिफ्रेम द क्वेश्चन, ऋषि कानद सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा में विश्वास रखते हैं, जबकि चाणक्य बिलीव्स इन द प्रीडोमिनेंस ऑफ अर्था और एज द बेसिस फॉर अदर थ्री पुरुषार्थ। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन कि ये चार पुरुषार्थ आखिर में होते क्या हैं, और हाउ कैन वी यूज दिस फोर पुरुषार्थ टू एस्टैब्लिश दैट इन चाणक्य क्योंकि अर्था को पहले रखते हैं, हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस फोर पुरुषार्थ? तो चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आ गया। ठीक है, तो हमारे शास्त्र लिखते ही धर्म सबसे पहले है। ठीक है, तो ऋषि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में ये कहा कि धर्म वो है जो अर्थ और काम को इस तरह से बांधे कि व्यक्ति अभ्युदय की ओर जाए और फिर उसका निश्रेयस, उसको मोक्ष मिल जाए। सो अर्थ और काम को मर्यादा में बांधने का काम धर्म करता है। अर्थ हो गया पैसा, पावर, लाइवलीहुड, पॉलिटिक्स, ये सब अर्थ आ गया। काम इच्छाएं आ गया, डिजायर आ गया, वासनाएं आ गई, जो है ना हमारे ड्रीम्स आ गए, सब ये सब काम में आ गया। धर्म क्या आ गया? धर्म बता रहा है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है। जैसे हम कहते हैं अस्तेय और अपरिग्रह, तो ये कहां से आया? ये धर्म से आया। मतलब चोरी नहीं करना चाहिए और उतने प्रॉपर्टी का एक्युमुलेशन करना चाहिए जितना आपके लिए एनफ है, मोर देन एनफ है। तो अस्तेय और अपरिग्रह कहां से आया? धर्म से आया। तो अस्तेय और अपरिग्रह ने अर्थ को बांधा। राइट। ठीक है, जी। और काम, काम में जो है वो कहा गया कि अपने इच्छाओं की पूर्ति करना है लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देना है, तो उसमें अहिंसा अगर हम कह दे रहे हैं, ठीक है, झूठ बोल के नहीं करना है, तो सत्य उसमें आ गया, है ना। तो जो इच्छाएं हैं वो दूसरे के जो जीवन है उसको डिस्टर्ब ना करे, मर्यादा को ना तोड़े, है ना, वहां पर फिर धर्म ही डिसाइड कर रहा है। तो अर्थ और काम को बांधता धर्म ही है। ठीक है, और मोक्ष जो है वो एंड रिजल्ट। ऑब्वियस हो जाता है अगर ये तीनों अलाइंड है तो। जी। ये थोड़ा एक डिफरेंस आएगा भक्ति प्रधान और पुरुषार्थ प्रधान में, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल और जो थिंकर्स वो कहेंगे कि मोक्ष इज द प्रोमिनेंट, वो डिसाइड करेगा धर्म, अर्थ, काम। ठीक है, एक व्यक्ति कहेंगे कि मोक्ष तो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो है उसको ठीक कर लो, तो तुम्हारा डायरेक्शन तो मोक्ष की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर ऐसे हम बोले तो मोक्ष और धर्म कहां पे आएगी ये बताना बड़ा कठिन है, बट तीन की ही बात एक साथ होती है, मोक्ष की अलग से बात नहीं होती। ठीक है, मतलब अलग से होती है, इन तीनों के साथ में होती है, धर्म, अर्थ और काम। आचार्य चाणक्य ने क्या किया? राजधर्म में अर्थ को प्रदान कर दिया, स्टेट के लिए अर्थ को प्रदान कर दिया। जब भी स्वधर्म होगा तो धर्म ही प्रधान होगा, इसलिए तो वो वेद पहले पढ़ रहा है। जब वेद पढ़ाया ही जा रहा है तो अर्थ प्रधान तो हुआ नहीं। तो एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है जीवन जीने का, वहां धर्म ही प्रधान है। बट स्टेट का, राजा का, वहां पे अर्थ प्रधान हो जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, है ना, कि स्वधर्म और राजधर्म जो है या राष्ट्र धर्म है, ये थोड़ा थोड़ा भेद है इसमें। जैसे संतोष जो है वह स्वधर्म में आ जाएगा और राजधर्म में असंतोष आ जाएगा। अपरिग्रह जो है वो स्वधर्म में आ जाएगा, बट परिग्रह जो है वो राजधर्म में आ जाएगा। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं इस वक्त पे पूछना चाहती हूँ। अ, किताब के अंदर ईगो, फेयर और इन सब ट्रेट्स का वर्णन है। सो हाउ आर ईगो एंड फियर, ये जो दो तरीके के टेस्ट करने के तरीके होते हैं एक किंग को, दीज टू आर इंटरलिंक्ड, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड? ओके, सो जो अमात्य के सिलेक्शन प्रोसेस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर हम कह रहे हैं धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। धर्म, अर्थ, काम और भय, इन चार का हम टेस्ट करते हैं। धर्म मतलब हम वहां पर टेस्ट करेंगे उसका आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, आइडियोलॉजी क्या है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से उसके धर्म और अधर्म की परिभाषा हो जाएगी। राइट। ठीक है, काम में उसमें लस्ट टेक्निकली बताया गया है, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 1
अगर वो राजभवन में वहां पर संरक्षक के रूप में, तो लस्ट का टेस्ट उसको पास करना है। अगर वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है तो अर्थ का टेस्ट उसको पास करना है, पैसे का टेस्ट पास करना है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पर वो बहुत उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है काउंसिल्स को, तो धर्म का टेस्ट वहां पर उसको पास करना है। अब भय यहां पर मैंने कहा कि ईगो, उसको बेसिकली आज की जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में माइस स्ट्रैटेजी है, मॉनेटरी आइडियोलॉजिकल कोहेर्सन एंड ईगो, उसको एक्चुअली एक सुपर इम्पोजिशन किया था कि माइस स्ट्रैटेजी, और यहां पर ये जो चार टेस्ट है इसको अगर हम मैच कराएं तो भय और ईगो बेसिकली कोइंसाइड करता है। तो ईगो इज योर पर्सनालिटी, योर बॉडी लैंग्वेज, योर बिहेवियर, है ना, और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, क्या। तो ये जो असेसमेंट है ये ईगो के लेवल पे। तो भय जो है वो एक्चुअल वो बाहर जाहिर करता है कि जो आप सोच रहे थे वो करते भी है क्या। आचार्य चाणक्य कहेंगे कि प्लानिंग से वो संतुष्ट नहीं होते, डिसीजन से नहीं संतुष्ट होते, बट उसके पास डिसीजंस को उसने कैसे एग्जीक्यूट किया है उसके बेसिस पर उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो भय जो है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है। अगर वो फेयरलेस है, करेज है, करेजियस है किसी सिचुएशन में, तो उसने ईगो टेस्ट को पास कर लिया है। ठीक है, Understood. जी। दैट्स व्हाई दीज आर इंटरलिंक्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर MIC ट्रैप के ऊपर ही है। So with the support of mice trap, how can we streamline today's bureaucratic structure uh, and the subsequent selection of the ministers? Does it hold any relevance in a democratic governance? ओके, सो एक्चुअली मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वो यूएस में ही है। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी रिक्रूटमेंट में सिर्फ रिटन और इंटरव्यू नहीं होता, उसकी पूरी चाइल्डहुड से ट्रेस की जाती है कि वो Right. क्या रहा है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर अमात्य, एंड अमात्य इज नॉट मंत्री, अमात्य मिनिस्टर्स नहीं होते बट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो प्रमोट होके मिनिस्टर बनते हैं। Okay. तो बहुत लोगों ने पूछा चाणक्य नीति क्या अभी अप्लाई हो रही है क्या, तो मैंने कहा हाँ, एस जयशंकर जी पहले ब्यूरोक्रेट थे, अभी मंत्री बने। दैट इज द चाणक्य वे। वो पहले अमात्य थे, बाद में मंत्री बने। ठीक है, सो ये थोड़ा ट्रांसलेशन में भी लोग अमात्य को मिनिस्टर्स कह देते हैं, बट अमात्य इज जेनरिक टर्म, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को हम अमात्य कह सकते हैं। वो कस्टम ड्यूटी का भी हेड हो अमात्य हो जाएगा, मंत्री है वो भी एक काइंड ऑफ अमात्य ही था पहले। तो उसके सिलेक्शन में हम रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे हम 15 मिनट के इंटरव्यू में कैसे जज कर लेंगे पर्सनालिटी, है ना। True. जी। तो तो उसके कई प्रोसेसेस रहे हैं सिलेक्शन के। तो उसमें जैसे पहला है कि उसके नेटिव प्लेस एंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी भी होता है, आपको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ता है, बट एक्चुअल ये वेरिफिकेशन हो रहा है, इट्स नॉट पेपर वर्क। Verification. जी। ठीक है, फिर कैपेबिलिटी एंड स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ की पूरी, इट्स नॉट अभी के हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, स्कूल का भी चेक हो रहा है। इट्स नॉट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का है, नहीं, वो एक्चुअल टीचर से एंड क्लासमेट से इंक्वायरी हो रही है। इसलिए आचार्य चाणक्य क्या कहता है चंद्रगुप्त को कि तुम जब विद्यालय में हो, झगड़ा मत करना अपने मित्रों से। क्या पता जब उनके पास इंक्वायरी आए तो तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ बोल दे। तो अपने थ्रू आउट स्टूडेंट लाइफ में बना के चलना, लोगों से अच्छा कॉन्फ्लिक्ट में मत रहना, क्योंकि बाद में वो क्रॉस चेक होगा तो वो आउट ऑफ ग्रज और वेंजियंस कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। ठीक Right. है, फिर आगे ऑरिटरी स्किल एंड टैलेंट। तो ये पब्लिक स्पीकिंग से ही देखा जा रहा है, पब्लिक स्पीकिंग जो है उसका एक्चुअल में देखा जा रहा है, उसके हिसाब से ऑरिटरी स्किल की उसकी बात होगी। एक्साइटमेंट, इन्फ्लुएंस एंड टॉलरेंस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। उस समय ऐसा नहीं मतलब सब कुछ गुडी गुडी है, उस समय एक्साइटमेंट, इन्फ्लुएंस और टॉलरेंस की बात नहीं हो रही है। जब बुरी स्थिति थी तब टॉलरेंस, एक्साइटमेंट एंड इन्फ्लुएंस कैसा है। देन मॉडेस्टी, हेल्थ, स्ट्रेंथ, सैनिटी एंड प्राइड, ये नेबर्स से ये पूछा जाएगा।
एंड अब लास्ट में सॉफ्ट स्पोकन एंड फ्री फ्रॉम ग्रजेस है कि नहीं, ये किंग हिमसेल्फ। तो ये लास्ट टेस्ट है जो राजा स्वयं करते हैं। बाकी जितने टेस्ट है, कभी वृद्ध जनों से किया गया, कभी क्लासमेट्स से किया गया, कभी टीचर्स से किया गया, नेबर्स से किया गया, या एक सिचुएशन दिया गया, मतलब सिलेक्शन हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने, हमारे मारवाड़ी भाई बंधु हैं, तो उन्होंने कहा कि हम स्टाफ सिलेक्शन में जब नए नए स्टाफ आते हैं तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और उसका एक्चुअल में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का टेस्ट होता है। हम कुछ पैसे छोड़ के चल जाते हैं और देखते हैं कि उस पैसे का वो क्या करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसीजर में इंड्यूस किया जा रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे फियर है, या मॉनिटरी कुछ ऐसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो फीडबैक लिया जा रहा है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। सो यू कैन से जो हमारी जो यू कैन से जो एजेंसीज है उसमें तो आई थिंक होती ही होगी। आईबी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल दे, या फिर टॉप लेवल के स्पाइज एंड उस लेवल पे अगर हम बोले सिक्योरिटीज डिफेंस में। बट यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी उसी लेवल के एक स्टैंडर्ड है कि धर्म धर्म अर्थ काम जो है, तो भय, ये चारों टेस्ट को वो पास किया है, तभी वो अमात्य बनने लायक है। एंड ऑब्वियसली नो वन कैन पास विथ 100 मार्क्स, लेकिन 50 मार्क्स भी अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत है। 25 मार्क्स से, मतलब परसेंट से नीचे मार्क्स है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, यू कैन से। एंड 100% के प्रॉक्सिमिटी में तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। दैट्स राइट। दैट्स द यस। सो आजकल कॉर्पोरेट्स में जरूर इसका कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन है, आई नॉट से 100%। जो ये कॉन्सेप्ट है 360 डिग्री फीडबैक जो हम कलेक्ट करते हैं अपने कलीग से, आपके इमीडिएट बॉसेस से, विच विल अल्टीमेटली शेप योर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। सो आई नो बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट इट तो आई वाज एबल टू कोरिलेट। एंड आई थिंक किसी हद तक आज भी जो पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड है, वो अगर किसी पीएसयू के टॉप ऑफिशियल्स को रिक्रूट करते हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ हद तक होता है। इनफैक्ट कुछ आर्मी के अंदर भी अगर कोई है तो उनके जो बेटर हाफ होंगे आफ्टर, राइट आफ्टर देयर मैरिज, उनका भी कुछ इस तरीके का टेस्ट होता है। मैंने अपने कुछ कजिन्स के साथ ऐसा होते देखा है। सिंस यू वर मेंशनिंग सो आई वाज एबल टू रिकलेक्ट। बुक के लास्ट चैप्टर मैंने करप्शन के ऊपर बात की है, तो वहां पर ये टेस्ट भी है कि जी। आपके, हाँ, आपके पार्टनर का भी टेस्ट होगा धर्म अर्थ काम का, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। आपका अगर पार्टनर ऑनेस्ट नहीं है तो आपसे गलत काम करवाएगा। Right, that is true. So, given that the concept of reincarnation is closely linked to Sanatan Dharma, does introduction of Lokayat or Charvak philosophy by Chanakya indicates that his teachings are more in consonance with Abrahamic religions? ओके। सो मैंने मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में जैसे बात की थी कि असंतोष इज अ वर्च्यू और रिक्वायर्ड, या स्ट्रेस लेना, एक एक कैलकुलेटेड जो हम कहते हैं, या एक थ्रेशोल्ड लेवल तक स्ट्रेस लेना इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव अ ग्रोथ। ठीक है। अब वो कौन कितना बेयर कर पाता है वो अलग पार्ट ऑफ डिस्कशन है, बट कंटेनमेंट और शांत रहना, इससे सीधा ग्रोथ नहीं होगा। तो उसी तरह हमारी 1000 लाइफ्स है, 10,000 बर्थ्स हैं, पाप और पुण्य एट द एंड सेटल डाउन होंगे ही होंगे। तो इस अप्रोच से सबसे पहले तो जो जस्टिस सिस्टम है वो डिलेड होने लगता है। राजा नहीं बोल सकता कि देखो उसने पाप किया है तो उसका भुगतेगा वो खुद। वो न्याय कैसे करेगा? तो अपने हाथ में न्याय लेने के लिए पहले रिडक्शनिस्ट अप्रोच में हम आते हैं। हम बुराइयां बहुत करते हैं कि देखो ये बड़ा अब्राहमिक रिडक्शनिस्ट है, यू ओनली लिव वंस पे बात करता है ना। बट आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही है, कई हमारी जन्म है। लेकिन आपको मटेरियल गेन करना है, पावर गेन करना है, तो वहां पर एक अप्रोच और पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप 25 साल तक राजा है, 30 साल तक राजा है। तो जस्टिस सिस्टम अपने हाथ में लेने के लिए परमात्मा का अंश आप बन जाएंगे। तो भारत के राजा को कहा जाता है कि परमात्मा का अंश है, और कई तो अवतार बने, भगवान श्री राम और भगवान सब तो राजा है ना। तो जो भी राजा है वो परमात्मा के अंश बने। तो राजा ही अगर परमात्मा का अंश है
तो पाप और पुण्य का फैसला करने का भी अधिकार आ गया उसके पास। तो जस्टिस और न्याय वो कर सकता है। तो पहला तो चार्वाक होने का ये मतलब है, ठीक है, लोकायत होने का ये आधार है। दूसरा है कि ये बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, हर राज दरबार में चारवाक और लोकायत हमेशा रहे हैं, भगवान रामचंद्र के भी रहे हैं, हमेशा हर काल में रहे। क्यों? क्योंकि गुरुओं को ये डर होता था कि कहीं हमारे राजा वैराग्य की तरफ बढ़ के राज शासन को त्याग करके ना चले जाए, सन्यासी ना बन जाए, और फिर साम्राज्य जो है डाउनफॉल में चला जाता है। तो राइट। उसे बैलेंस आउट करने के लिए चारवाकों से भी घिरा रहना आवश्यक है, जो क्रॉस क्वेश्चन करें। तो जो आन्वीक्षिकी का एक और प्रिंसिपल है कि आन्वीक्षिकी प्रश्न करता है। ठीक है। तो अगर एक ही तरह के सोचने वाले व्यक्ति अगर एक तरफ बैठे हैं तो ग्रोथ नहीं होगा फिर। ग्रोथ नहीं होगा, बिल्कुल सही। ठीक है। तो चारवाक और लोकायत प्रश्न अगर करेंगे नहीं तो पाखंड घटेगा कैसे आपका? क्योंकि जब वो प्रश्न करेंगे तो उसको आंसर देने के लिए आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सनातन प्रिंसिपल को बताने जाएंगे और पालन करेंगे। राइट। ठीक है। और ये दोनों बोथ में ग्रोथ होगा। अभी क्या होता है कि हम कॉन्फॉर्मिटी हमारे अंदर आ गई, हम बुरा मान जाते हैं कि कोई हमारे धर्म के अगेंस्ट ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। बट उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम साइंस में ग्रोथ अगर करना चाहते हैं तो ये बातें बंद करना पड़ेगा कि सब कुछ वेद में ही था, उसके बाहर कुछ नहीं था। ठीक है। सो ये एक्सेप्टेंस तब आता है जब यू हैव द कैपेसिटी टू लिसन ट्रूथ फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। राइट। तो चारवाक और लोकायत का ये रोल है कि अ, उस काउंसिल को इंटेलेक्चुअली नर्चर करते रहता है। वो विरोधी ही है, ठीक है, और सनातन प्रिंसिपल के ऑब्वियसली विरोध में है, लेकिन वो सभी के लिए उपयोगी है, इवन राजा के लिए भी, कि वो छोड़ के ना चले जाए राइट। साम्राज्य को। क्रिटिक का तो हमेशा से इस सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो भले ही आपको अपने धर्म से और जोड़ने के लिए भी मददगार बिल्कुल। साबित होते हैं, और कई बार आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आपने चाणक्य के पर्सपेक्टिव से हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से आंसर किया है, एंड आई रियली होप ये हमारी ऑडियंस को भी इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। जिस तरीके के डाउट्स और कंफ्यूजन्स रहते हैं यूजुअली, जो हम पुराने टेक्स्ट को पढ़ करके मॉडर्न कंटेक्स्ट में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं या मिसजज कर बैठते हैं, वो इस तरीके की वार्ताओं से ही कई बार इस तरीके की कंफ्यूजन्स क्लियर होता है। सो डेफिनेटली इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। आगे दोबारा आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा, तो थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।